प्रियंका और आप सभी दर्शकों का शल्पांचल की ताजा खबरों के साथ बीबी न्यूज में स्वागत है। चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। कुल्टी आसनसोल के बाद अब सलानपुर में भी अवैध हथियार के कारखाने का भांडाफोड़ हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सलानपुर थाना के रूप नारायणपुर थाना अंतर्गत चितालडांगा के ऊपर पाड़ा इलाके में एक घर को भाड़े पर लेकर अन्य राज्यों से कारीगरों को लाकर अवैध धंधे को अंजाम दिया जा रहा था। गुरुवार मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस घटनास्थल पहुंची, जहां उस घर से भारी मात्रा में बंदूक बनाने के यंत्र, लेथ मशीन सहित कई यंत्र को बरामद किया गया। साथ ही पुलिस ने उस घर से कई लोगों को गिरफ्तार भी की है। इसके साथ ही एक मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार घर का मालिक चितरंजन का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसने अपने घर को भाड़े पर दिया हुआ था। कारखाना की जानकारी मिलने के पहले घर को कुछ दिनों तक बंद देखा गया। इसके बाद पिछले कुछ दिनों से एक बार फिर से इस कारखाने को खुला देखा जा रहा था। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें इस कारखाने में नट बोल्ट तैयार करने की जानकारी दी गई थी। শুনলাম যে এখানে নাকি পিস্তল বানানো হচ্ছে বাইরে থেকে এসে, এটাই। আর এই কি হচ্ছিল এখানে, কি হচ্ছিল এটা আমি ডিটেইলসে কিছু বলতে পারছি না। তো আপনার কতদিন ধরে এটা এইখানে কতদিন ধরে হচ্ছিল এটা? কিছু ওই ব্যাপারে কিছু বলাই যাবে না। পুলিশ এসেছিল এখানে? কি জন্য এসেছিল? আমি তো তাই শুনলাম যে এখানে কিছু উদ্ধার হয়েছে, বোম পিস্তল উদ্ধার হয়েছে? বানানো হচ্ছিল নাকি, এটাই আর কি। কতটা আতঙ্ক আপনারা? আতঙ্ক হওয়ার মতো নেই। আপনার নাম? আমার নাম সুরেন্দ্র। সুরেন্দ্র। এখানে শুনলাম, আমি বাড়িতে ছিলাম, শুনলাম যে এখানে নাকি বন্দুক পাওয়া গেছে। তো আমার বাড়ি তো দূরে, এখানে বড়দিন থেকে এটা বন্ধ আছে, কিন্তু কেউ থাকে এটা জানি, আর কি কি তৈরি হয় সেটা আমি জানি না। আমি তখন দূরে বাড়ি, পাশে যারা আছে তারা হয়তো বলতে পারবে। কি দেখলেন এসব কি দেখলেন? এসে দেখিনি কিছু, শুনলাম যে ওই যা বার করলো, শুনলাম 70 নিয়ে গান বার করেছে, এইটুকু শুনলাম। তো আপনারা এমনি লোকালয়ের মধ্যে আর্মস ফ্যাক্টরি, কতটা আতঙ্ক আপনারা? আতঙ্ক তো আছেই, এভাবে যদি হয় তাহলে আতঙ্ক তো হবেই। কি নাম আপনার? আমার নাম দিনেশ বাবু। लेकिन आज पुलिस की छापेमारी के बाद ये पता चला कि यहाँ अवैध रूप से हथियार बनाने का कारखाना चलता था। पुलिस ने इस कारखाना से कई लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ करने के बाद सही तथ्य सामने आ पाएंगे। चुनाव से पहले हथियार तैयार करने के कारखाने का खुलासा होने के बाद से इलाके में उत्तेजना फैल गई है। साथ ही आसपास के लोगों में डर का माहौल भी देखा जा रहा है। সবাই মিলে জানছি যে এখানে এইসব কাণ্ড হচ্ছিল। কি এসে নিয়ে যখন এখানে সবাই ভিড় করলো, আমিও এলাম, এসে নিয়ে দেখলাম যে এরকম বলছে নাকি এখানে আর্মস তৈরি হতো বা কিছু। কারা এসেছিল কারা এখানে? ভিড় কারা জমিয়েছিল? এখানে পুলিশ গাড়ি এলো, পুলিশ গাড়ি আসার পরেই আমরা এসেছি, তার আগে আমরা আসিনি। তারপরে কি দেখলেন? তারপরে বললো ভেতরে নাকি কিছু তৈরি হচ্ছিল, তা আমরা লেবার লাগলো মানে এখান থেকে উঠিয়ে গাড়িতে চাপানোর জন্য। তখন গেলাম ভেতরে, যেয়ে নিয়ে দেখছি যে হ্যাঁ অনেক কিছু করে জিনিস, আর্মস বানানোর কি কি সরঞ্জাম, অনেক কিছু মেশিনপত্র আছে, ওগুলো দেখলাম, সেইটুকুই। লোকালয়ের ভেতরে এমনি চলছে, আপনারা কতটা আতঙ্কে? আমরা দেখেছি অনেক দিন ধরে বন্ধ পড়ে আছে জায়গাটা, এইগুলো বন্ধ পড়ে আছে, আমরা যাওয়া আসা করি, বন্ধ ঘর, ওই জন্য অতটা ধ্যান দিইনি। বাড়িটি কার? বাড়িটাই চিত্তরঞ্জনে এক পার্টি জমি কিনেছিল, তার বাড়ি আছে এটা রাখা। কতটা আতঙ্কে আছেন আপনারা এই এখন? আতঙ্ক তো এই প্রথমবার আমরা এইসব দেখলাম আমাদের গ্রামের মধ্যে, তো নিশ্চয়ই আমাদের মধ্যে তো একটু আতঙ্ক হবে। এত বড় কাজ আমরা তো এখানে কোনদিন সম্ভব চিন্তাধারাই করতে পারি। কি নাম আপনার? এখন তো একটা আতঙ্কের মধ্যে সবাই আছে, যে এত বড় কাজ এখানের মধ্যে হচ্ছে, তার মানে এখানে আরো অনেক কিছু ভয়ের মেটার আছে। আপনার নাম? আমার নাম স্বরূপ দাস। আমরা প্রায় যাতায়াত করতাম, এই বাড়িটা অলরেডি বন্ধই ছিল। হঠাৎ কিছুদিন ধরে দেখছি দরজাগুলো খোলা, তো যাতায়াতের সময় দেখতে পেতাম, কোনো লোকজনকে দেখতে পেতাম না, শুধু দরজাগুলো খোলা থাকতো। কিন্তু হঠাৎ যখন দেখছি এত পুলিশের ছয়লাভ বাড়ির কাছে এসে নিয়ে খবর নিচ্ছি, তখন শুনছি এই ধরনের অস্ত্রশস্ত্র এখানে তৈরি হতো। কতদিন ধরে হচ্ছিল জানা আছে? সেটা আমি তো আজ 3-4 দিন ধরে দেখছি দরজাটা খোলা আছে, তার আগে আমি কোনোদিন ফলো করিনি। কিন্তু ওই যাতায়াতের সময় ওটাই দেখলাম যে দরজা খোলা আছে। দিয়ে আজকে যখন পুলিশের ছয়লাভ দেখলাম, তারপরে এসে নিয়ে গ্রামবাসীরাও যখন সবাই বললো, এসে নিয়ে দেখছি যে এই জিনিস তৈরি হচ্ছে। কি উদ্ধার হয়েছে, কি দেখেছেন? অস্ত্রশস্ত্র তৈরি হচ্ছিল। মানে কোথাকার ছিল লোকগুলো? এই সেসব বলতে পারলাম না কোথাকার ছিল,
এইরকম লোকালয়ের মধ্যে চলছিল, তো এই কতটা আতঙ্কের মধ্যে আপনারা আছেন এখন? এখন তো যা দেখছি তা দেখে তো আরও আতঙ্ক, সামনে ইলেকশন আছে, আর এত আতঙ্কের মধ্যে সারা গ্রামবাসী আছে এখন। কোথাকার লোক মনে করছেন এগুলো? এগুলো ইউপি বিহার সাইডের হবে। স্থানীয় কি কোনো পরিচিত মনে করছেন? না না, তাদেরকে দেখে যতটুকু বোঝা গেল ইউপি বিহারের। বাড়ির মালিক কোথাকার? বাড়ির মালিক তো যতদূর সম্ভব শুনেছি চিত্তরঞ্জনের। আপনার নাম? আমার নাম জেকে ব্যান্সলি। কোথায় বাড়ি আপনার? আমার উপরপাড়াতেই বাড়ি, অনেকটা দূরে, মানে এই। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रानीगंज के मजार शरीफ रोड में हसीना मोड़ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां तबरेज अली ने सभी धर्म के लोगों को सम्मानित किया। इसके अलावा श्री दुर्गा विद्यालय, बसंती देवी गोयनका विद्यालय, ज्ञान भारती स्कूल, रानीगंज उर्दू हाई स्कूल, मारवाड़ी सनातन विद्यालय और मदरसा मदनी हाफिज कारी के कुल 50 विद्यार्थियों को ह्यूमन राइट्स की तरफ से 2021 की परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। इसके साथ ही सभी धर्मों के लोगों को उनकी आस्था के अनुसार धार्मिक तस्वीरें दी गई। यह कार्यक्रम ह्यूमन राइट्स के यूनाइटेड इंचार्ज रानीगंज के तबरेज अली के सरपरस्ती में किया गया। इनके अलावा संस्था के पटना यूनिट के प्रभारी वसीम जाफर, मदरसा मदनी के हाफिज मौलाना रिजवाना कादरी, 89 नंबर वार्ड के पार्षद मुजम्मिल शहजादा अंसारी, डीएस माजी हरजीत सिंह बग्गा और तमाम सदस्यगण मौजूद रहे। प्रोग्राम में आने वाले सभी मेहमान जो रानीगंज के मकामी हैं और रानीगंज से बाहर से भी तशरीफ लाए हैं, और ख़ास तौर से ओपेक्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इसके चीफ एग्जीक्यूटिव और जितने भी गवर्निंग बॉडीज़ हैं, हम सबके शुक्रगुजार हैं। और ख़ास तौर से इस प्रोग्राम के आयोजित करने के हवाले से हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हम अपनी गंगा जमनी तहजीब को, जो हमारे हिंदुस्तान, हमारे मुल्क की वो शान है जो शायद दुनिया में আপনারা আয়োজন করে আমাদেরকে উৎসাহিত করবেন। আমি একজন চিকিৎসক, খুব ভালো বক্তা নই, কিন্তু আমার ধর্ম আমার পেশা নয়। আমার চিকিৎসা আমি কখনো পেশা হিসাবে দেখি না, শুধু নেশা হিসাবে দেখি। এবং আমি মনে করি যে আমার নিজস্ব কোনো ধর্ম বলতে আমি মানবতাকে একমাত্র ধর্ম বলে মনে করি। আমি নিজে হিন্দু কিনা জানি না, কিন্তু আমি জানি আমি একজন চিকিৎসক এবং সর্বোপরি একজন মানুষ, এবং সেই মানুষের জন্যই আমি কাজ করতে চাই। সারা জীবন আমি মানুষের পাশে দাঁড়াতে চাই, সে হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, শিখ হোক, সবাই আমার ধর্ম, আমি সব ধর্মকেই আমি সমানভাবে मुकम्मल करता हूँ। तरफ से मैं मोहम्मद तबरेज अली, रानीगंज के इंचार्ज, जो कि आज पूरा रानीगंज में आपका रानीगंज श्री दुर्गा विद्यालय, रानीगंज मारवाड़ी सनातन विद्यालय और बसंती देवी गोयनका विद्यालय और रानीगंज उर्दू हाई स्कूल के जितने भी लड़के लोग जो 10 क्लास 12 क्लास में जो फर्स्ट डिवीज़न और टॉपर किए हैं, उन लोगों को आज हम लोग प्रेजेंटेशन किए, हौसला अफजाई के लिए ये सेमिनार का आयोजन किया गया है। और प्लस आपका ये हाफिज कुरान और जो कारी इस साल जो हुए हैं, उन लोगों को भी हम लोग प्रेजेंटेशन देने के लिए, हौसला अफजाई के लिए आज के हम लोग 5 साल से ये प्रोग्राम कर रहे हैं। आज ये इस 2022 का ये 5वां साल है कि इस प्रोग्रामाइजेशन को हम लोग कंप्लीट किए हैं। इंशाअल्लाह ताला आए दिन दूसरा जो आपका 2023 आएगा। कौन कौन यहाँ पे उपस्थित? मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन शहजादा साहब जो 89 वार्ड के काउंसलर हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज शिरकत किए हैं। बहुत बड़ा हौसला अफजाई है। और हमनान साहब, डॉक्टर माजी साहब, जो हम हमेशा हम लोग के लिए 24 आवर्स समाज सेवा के लिए तैयार रहते हैं, मैं उनका भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, डॉक्टर माजी साहब का। और हमारे पटना यूनिट इंचार्ज के मोहम्मद वसीम साहब, जफ़र साहब भी आज इस
जलसे में शिरकत किए हैं, उनका भी बहुत दिलो जान से मैं शुक्रिया अदा करना चाहिए। रानीगंज गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज़। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव के लिए टीएमसी लगातार अपने उम्मीदवारों के साथ चुनावी सभा कर रही है। गुरुवार भी बाराबनी ब्लॉक के पानूडीहा अस्पताल मैदान में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा, मंत्री मलय घटक, सांसद कल्याण बनर्जी और बाराबनी विधायक सह आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय, बाराबनी ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष असीत सिंह, जिला परिषद की पूजा मांडी, पंचायत समिति अध्यक्ष माला बावरी, उपाध्यक्ष सुकुमार साधु सहित कई व्यक्तिगण मौजूद रहे। और आसनसोल की जिम्मेदारी संभाले। मैं अभी तक देख के सोच ही रहा था कि अचानक ममता जी का फोन आ गया। उन्होंने कहा, शत्रुघ्न जी, আমি আপনার নাম অ্যানাউন্স করে দিয়েছি, এখন তো আপনাকে যেতে হবে ওখানে আসানসোল, ওরা ওয়েট করছে আপনার। প্লিজ টাইম নয়, আপনি না কিছু না বলুন না, আপনার হয়ে গেছে, অ্যানাউন্সমেंट হয়ে গেছে, আপনাকে যেতেই হবে और যেতেই হবে। ऐसा कह दिया ममता जी ने, आपका नाम अनाउंस हो गया तृणमूल कांग्रेस से आसनसोल से, तो मैंने बिल्कुल समय व्यतीत नहीं किया, बगैर समय गंवाए मैंने ममता जी के निर्देश सपोर्ट करने अपना আমার সাপোর্ট মেইন সাপোর্ট হবে আমাদের বিশ্ববিখ্যাত টাইগার্স অফ বেঙ্গল, গ্রেট লেডি, গ্রেট লিডার, গ্রেট হিউম্যান বিং মমতা ব্যানার্জির সাপোর্ট আপনি করবেন, আমাকে সাপোর্ট করবেন। আমি এখানে মালাজি বসে আছেন, পূজা জি আছেন এখানে, আমি কংগ্রেচুলেট করি, ব্লেস করি, উইশ করি। তারপরে আমার বন্ধু এত এমিনেন্ট এন্ড প্রমিনেন্ট লয়ার, আমি ভীষণ ফায়ার করি আমার ক্লোজ বন্ধু কল্যাণ ব্যানার্জি। असीत सिंह जी भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, बहुत लोकप्रिय हैं, बहुत जमीन से जुड़े हुए हैं, लोग उनको बहुत मानते हैं और वो लोगों को बहुत मानते हैं। और मैं इतनी बड़ी विशाल जनसभा, इतना जबरदस्त माहौल, ऐसे यंगर जनरेशन युवा पीढ़ी को, अपने मजदूर परिवार को, अपने किसान परिवार को, अपने भाइयों और इतने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर बहनों, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आपका अपना शत्रुघ्न सिन्हा, आपका अपना बिहारी बाबू या फिर आपका अपना बंगाली बाबू, आप सबको प्रणाम करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। स्वागतम स्वागतम शत्रुघ्न सिन्हा, स्वागतम। तो आमिও বলছি আপনাকে স্বাগতম স্বাগতম, আপনাদের স্বাগতম। मैं यहाँ पे सही माने में आया हूं या लाया गया हूं। मुझे कल्याण बाबू ने बहुत आगे कहा था 2019 में कि आप जैसा आदमी के लिए जो इतना अच्छा बोलता है, इतनी बुलंद आवाज है, ऑपोजिशन की भाषा बोलता है, रूलिंग पार्टी के चाहे सरकार के, खूब बेशी बोलबो ना আজকে আগামী 12 তারিখ যে লোকসভা উপনির্বাচন, সেই উপনির্বাচনে আমাদের সকলের পরিচিত প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশীর্বাদ কন্যা মহাশয় মাননীয় শত্রুঘ্ন সিনহা মহাশয় আছেন এবং আমার আগে ভাষণ দিলেন আমাদের সকলের পরিচিত কল্যাণ কাকু আছে, আমাদের ব্লক প্রেসিডেন্ট অসিত আছে, সমস্ত নেতৃত্বরা আছে এবং সর্বোপরি যাদের জন্য আজকে আমরা এই জায়গায়, সে আমার সমস্ত তৃণমূল সকলকে আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা অভিনন্দন। খেলা হবে,
দেখো তোমাদের আমি বলছি একটু আগে মমতা বলে গেল, কল্যাণদা বললে আমাদের পাড়াবনির ছিলা ওঠে আমি তোমাদের ঘরের ছিলা আজকে যে জায়গায় পৌঁছেছে सब अदानी और अंबानी के लिए, देश में कोई आदमी नहीं है। ये भूखा आदमी आकर कौन सोचेगा, कौन सोचेगा? एक बुलंद आवाज चाहिए आसनसोल का डेवलपमेंट के लिए। आसनसोल में जितना आगामी दिन में जिस तरीका से नरेंद्र मोदी पुल डिजाइन छोड़ने के लिए अभी रेडी हुआ है, उसको फंड भरने के लिए पार्लियामेंट में आवाज करेंगे। वो सत्तर शिला का बुलंद आवाज छोड़ना आप लोग तो सभी जानते ही हैं उनका वो आवाज में कितना दम है। हमको नया कोई बोलना नहीं चाहिए। টিভি দেখে তারা দেখতে পাবে রেল আজ বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, এয়ার ইন্ডিয়া বিক্রি হয়ে গেছে, চিত্তরঞ্জনের লোকোমোটিভ কারখানা বিক্রি হয়ে যাবে। ইতিমধ্যেই বাজেটে পাস হয়ে গেছে চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ কারখানা পুঁজিপতিদের হাতে হাতে দেওয়া হবে। হিন্দুস্তান কেবল বন্ধ করে দিয়েছে, এই বিজেপি সরকার বন্ধ করেছে। বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর আমাদের এই অঞ্চলের প্রথম কাজ যেটা করেছে হিন্দুস্তান কেবলকে চাবি করে তালা মেরে দিয়েছে। দ্বিতীয় কাজ কি করেছে, বানপুরের বাগের কারখানা তালা মেরে বন্ধ করে দিয়েছে। তৃতীয় কাজ কি করেছে, রেলকে প্রাইভেট করে দিয়েছে। রেলের অর্ধেক প্রাইভেট হয়ে গেছে, বাকিটাও প্রাইভেট হবে। আর নানা রকম আওয়াজ, নানা রকম স্লোগান নরেন্দ্র মোদী দিয়ে থাকেন। কি বলেছিলেন যে আজকে দিন আয়েগা, আজকে দিন আ রহা। 8টা বছর পেরিয়ে গেল, এত जामुड़िया थाना क्षेत्र के 7 नंबर वार्ड स्थित शेखपुर में कैलेस्टर स्पॉन्ज आयरन कारखाना में काम करने वाले श्रमिकों ने परिवहन को ठप कर गेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। कारखाना में कार्य करने वाले श्रमिकों का आरोप है कि उनके एरियर राशि का भुगतान सही रूप से नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से मैनेजमेंट का घेराव किया जा रहा है। प्रदर्शन कर रहे श्रमिक भोला बावरी ने कहा कि सालों काम करने वाले श्रमिक इस उम्मीद से काम करते हैं कि उन्हें सही समय पर और सही रूप से एरियर का पैसा मिलेगा, लेकिन मैनेजमेंट इसमें घोटालेबाजी कर रहा है। मार्च महीने तक 25,000 रुपए एरियर के रूप में दिए जाते हैं, लेकिन इस बार 18,000 रुपए ही दिए गए। नतीजा मजबूर होकर हमें प्रबंधन के खिलाफ आवाज उठानी पड़ी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक हमारे एरियर भुगतान का सही पैसा नहीं मिल जाता है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। मौके पर प्रशांत अधिकारी, विमल घोष, लक्ष्मीकांत बावरी सहित कई श्रमिक उपस्थित थे। এরিয়ার পয়সাগুলো সঠিকভাবে দেয় নাই, অনেক কম দিয়েছে, অনেক কম হিসাব করেছে। ওটার জন্য আমরা আন্দোলন করছি যে আমাদের এরিয়ার পয়সা যেমন ফুলভাবে দেওয়া হয়। ম্যানেজমেন্ট কি বলছে এই ব্যাপারে? ম্যানেজমেন্ট কিছু বলতে চাইছে না, মালিককে বলছে, মালিকের সঙ্গে আমাদের কথাও বলতে দিচ্ছে না। যদি তারা দাবির নাম মানে তাহলে কি এরপরে কি করবে? এখন আমাদের আন্দোলন বন্ধ চলবে। কি নাম? আমার নাম ভোলা বাবরি। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बीते 18, 19 एवं 20 तारीख को आसनसोल स्थित पोलो ग्राउंड में हुए सब डिविजनल एथलेटिक मीट में सफल हुए रानीगंज एथलेटिक क्लब के 36 प्रतियोगियों को रानीगंज मॉर्निंग वॉकर्स योगा ग्रुप की ओर से पुरस्कृत किया गया।
इस अवसर पर आसनसोल नगर निगम के 36 नंबर वार्ड के पार्षद दिवेंदु भगत ने कहा कि रानीगंज एथलेटिक क्लब के बच्चे एवं युवक युवतियां जिस रूप से प्रदर्शन किए हैं और रानीगंज का मान बढ़ाया है वह काबिल तारीफ है। इन 36 पुरस्कार पाने वाले प्रतियोगियों में नंदिनी हासदा ने अंडर 14 में 600 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान, प्रीतम चतुर्वेदी 20 वर्ष के 1500 मीटर दौड़ में द्वितीय स्थान, अमन भगत अंडर 14 लॉन्ग जंप में तृतीय स्थान प्राप्त किए हैं। मॉर्निंग वॉकर योगा ग्रुप की ओर से रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव मनोज केसरी ने कहा कि इस स्टेडियम का मान बढ़ाने में रानीगंज एथलेटिक्स क्लब की अहम भूमिका है। इनकी भूमिका से प्रभावित होकर हम लोग इनके साथ हैं एवं उन्होंने और भी कई बातें कही। इस स्टेडियम की देन है कि प्रत्येक वर्ष काफी संख्या में युवकों को सैनिक तथा अन्य क्षेत्रों में नौकरी मिलती है। उन्होंने सभी विजय प्रतियोगियों को जर्सी प्रदान करने के लिए बबलू सिंह के प्रति आभार जताया। मौके पर मॉर्निंग वॉकर योगा ग्रुप के अशोक अरोड़ा, ललित कुमार झुंझुनवाला, केपी सिंह, डॉक्टर कन्हैया केसरी, डॉक्टर मनोज कुमार, प्रदीप सिंह, मनोज तिवारी, विजय गुप्ता, विमल बाजोड़िया आदि ने भी अपने हाथों से प्रतियोगियों को सम्मानित किया। आज रॉबिन्सन स्टेडियम में एथलेटिक्स का जिन लोग यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड हुए उन लोग को प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। और इस प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन में रवि के द्वारा ये सभी को प्रोत्साहित करते हैं, छोटे छोटे बच्चे को और युवा संप्रदाय को। और ये सारा प्राइज़ कौशल सिंह के द्वारा यहाँ पर मॉर्निंग वॉकर ग्रुप के सारे लोग मिलकर ये चीज़ को इसको प्रोत्साहित कर रहे हैं बच्चों में। और देखा जा रहा है कि आज युवा संप्रदाय जिस तरह से आप अपने आप को शरीर चर्चा के लिए आप नियुक्त हुए और शरीर चर्चा कर रहे हैं, और उसके साथ साथ आज हम इन लोग को बोलेंगे कि जिस तरह से पढ़ाई लिखाई भी ज़रूरत है उस तरह से शरीर चर्चा भी ज़रूरत है। और गीता पढ़ने से अच्छा मैदान में आकर अगर अपना खेल कूद करें तो वही आज के यंग जनरेशन के लिए अच्छा होगा। यही बोलकर ये प्रोग्राम मुख्यतः उन एथलेटिक को सम्मानित करने के लिए किया गया जो रानीगंज में यहाँ पर रॉबिन्सन स्टेडियम में डेली प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं। इन लोगों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल में पार्टिसिपेट किया था, जहाँ पर सभी इलाके के आसपास के इलाके के रानीगंज, आसनसोल, बराकर, कुल्टी सभी जगह से एथलीट ने पार्टिसिपेट किया था। इसमें हमें ये बताते हुए हर्ष हो रहा है और गर्व भी हो रहा है कि रानीगंज में हमारे रॉबिन्सन में प्रैक्टिस करने वाले एथलेटिक जो कि रवि सिंह के नेतृत्व में करते हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छा मात्रा में प्राइज वहाँ जीत के आया है। जैसे ही हम लोगों को ये खबर मिली, हमारे मॉर्निंग वॉकर युवा ग्रुप के सभी सदस्यों ने कहा कि इस खुशी में हम लोग भी सही होना चाहेंगे। और इसी उपलक्ष्य में हमारे बबलू सिंह जी जो कौशल सिंह बबलू सिंह ने आगे बढ़ चढ़ के आया, बोला कि इसका भी जो भी खर्च होगा इसका हम खुद प्रायोजित करेंगे और बच्चों का आगे भी इसी तरह हौसला अफजाई होते रहे, किस तरह ये लोग आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल पर जाए, इन लोग का मोटिवेशन आगे बढ़े। इसको हम लोग एक छोटा रूप में आयोजन करके इन लोग का प्रोत्साहन करेंगे। इसलिए आज उन्होंने काफ़ी संख्या में 60 करीब टी शर्ट इन्होंने बनवाया है एवं मॉर्निंग वॉकर योगा ग्रुप की तरफ से फूड पैकेट भी किया गया है, जिसको हम लोग उन लोगों को आज यहाँ पर मोटिवेट करके इन लोगों को सम्मानित किया है ताकि ये सिलसिला आगे भी चलता रहे और एथलीट लोग आगे बढ़ चढ़ के रवि सिंह के नेतृत्व में रानीगंज जो कि रानीगंज एथलेटिक ग्रुप है इसको मुकाम को और आगे तक भी ले जाए और हमारे शहर का नाम रोशन करे। जो वहाँ पर जीते थे उसी उपलक्ष्य में ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। क्या चीज का प्रतियोगिता था? ये आसनसोल सब डिविजनल मीट था। क्या चीज का मीट था? फुटबॉल, क्रिकेट, एथलेटिक्स मीट था। अभी वो डिस्ट्रिक्ट ट्रायल जो भी बच्चे फर्स्ट सेकंड किए हैं वो डिस्ट्रिक्ट के लिए सिलेक्शन हुए हैं और 26-27 को पोलो ग्राउंड में उसी ग्राउंड में करवाया जाएगा और उसी ग्राउंड में हो रहा है। वो पार्टिसिपेट जो फर्स्ट सेकंड किए हैं वहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। शरण दास नामक व्यक्ति धर्म प्रचार को लेकर 16 फरवरी को पैदल यात्रा वृंदावन, अयोध्या, इलाहाबाद, काशी, गया, बोध, झारखंड होते हुए गुरुवार को दुर्गापुर पहुंचा। थोड़ा विश्राम कर आज ही मायापुर के लिए निकल पड़ेगा। आज सुबह दुर्गापुर सिटी सेंटर पहुंचा, जहां दुर्गापुर प्रेस क्लब की तरफ से उन्हें स्वागत किया गया। शरण दास से पूछे जाने पर उसने बताया कि वह 16 फरवरी को वृंदावन से मायापुर के लिए निकला था और बोलते हुए कहा कि वह धार्मिक स्थल को पैदल यात्रा कर रहा है एवं उसने और भी कई बातें कही।
16 फरवरी को आप वृंदावन धाम से पैदल चले, कितना तारीख तक वृंदावन माने मायापुर में पहुंचेंगे, ऐसा कुछ टारगेट रखे हैं आप? मायापुर पहुंचने का टारगेट मेरा 27 मार्च तक है। तो पहुंच जाइएगा 27 मार्च तक? प्रयास कर रहा हूँ। मायापुर पहुंचने के बाद क्या आप इसी पैदल से अपना लौटेंगे? मायापुर पहुंचने के बाद मैं ट्रेवलिंग करके और नैमिषारण्य जाऊंगा, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, जहाँ सुत गोस्वामी 84,000 ऋषि मुनि। जो रास्ता में आपसे कोई आदमी, कोई भक्त आपसे भेंट हो जा रहा है, आप उनको क्या उपदेश देते हैं? उपदेश शास्त्र के विषय में बताते हैं। वो अगर कोई प्रश्न करते हैं, उनका प्रश्नों का उत्तर प्रयास करता हूँ ठीक ढंग से दूँ, ताकि वो खुश हो जाए। आपका नाम? शरण दास। आपको बता दें कि वह रोजाना 50 किलोमीटर चलता है। अभी तक 1400 किलोमीटर चल चुका है। अभी भी करीब 200 किलोमीटर बाकी है और 10 से 12 दिन लगेंगे उसे मायापुर पहुंच जाने में। वह 2 से 3 दिन रहकर उसके बाद मध्य प्रदेश ट्रैवलिंग कर जाएगा। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো फ्रेश प्योर, फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर, इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, Inspiring Better Health, 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 244581, 244582. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसे इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 977576
66400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जागरूकता रैली एवं विभिन्न कार्यशाला के माध्यम से विश्व टीबी दिवस जिले भर में मनाया गया। बांकुड़ा जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तत्वाधान में डीएम कार्यालय से संलग्न माइनॉरिटी भवन में विश्व टीबी दिवस पर जागरूकता व्यापी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं दूसरी तरफ जिले के प्रत्येक ब्लॉक में जागरूकता रैली एवं सेमिनार का आयोजन किया गया। जिले के जंगल महल इलाके के ताल डांगड़ा ग्रामीण अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों की उपस्थिति में अस्पताल प्रांगण से जागरूकता रैली निकाली गई, जो कि बाजार की परिक्रमा करते हुए ताल डांगड़ा कम्युनिटी हॉल में समाप्त हुई, जहां आयोजित कर्मशाला के मध्य टीबी के संपर्क में लोगों को जागरूक किया गया। मौके पर ताल डांगरा बीडीओ सौरभ मजूमदार, ताल डांगरा बीएमओएच डॉक्टर अरिजीत मंडल समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। শপথ গ্রহণ করছি যে আজ 24শে মার্চ বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস উপলক্ষে আমি আমার পরিবার, বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন যেখানেই মানুষ। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर अदालत परिसर में बार एसोसिएशन की ओर से निर्वाचन होने जा रहे हैं कल, जिसकी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। कुल 709 वोटर अपना मत का प्रयोग करेंगे। बार एसोसिएशन की तरफ से बताया गया है कि 26 पद के लिए उम्मीदवार खड़े हैं, जिसमें अध्यक्ष पद पर 4 उम्मीदवार हैं, जिसमें देवव्रतो साई, गोरख प्रसाद साव, अभिजीत कुमार एवं असीम प्रमाणिक शामिल है। इसके अलावा सचिव पद के लिए 3 उम्मीदवार खड़े हैं, जिसमें अनुपम मुखर्जी, शुभ्रोतो मुखर्जी, मीर महबूब आलम, इसके साथ कोषाध्यक्ष तपन देव बिना प्रतिद्वंदी के जीत गए। इसके साथ ही एग्जिट मेंबर सहित असिस्टेंट सचिव सहित अन्य और भी पद पर मौजूद हैं, जिसके लिए उम्मीदवार खड़े हैं। आपको बता दें कि कल सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक यह वोट चलेगा। उसके बाद गिनती शुरू होगी, जिसमें काफी रात होगी। आज सुबह से ही उम्मीदवार वोट देने को लेकर अपने अधिवक्ताओं के साथ भेंट कर अपने पक्ष में वोट डालने के लिए उनसे निवेदन किए। इनके साथ ही परिसर में पंडाल भी बनाए जा रहे हैं, जहां अधिवक्ता बैठेंगे और साथ ही खाने पीने की भी व्यवस्था रहेगी। चुनाव को देखते हुए आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से भी पुलिस सुबह से ही वहां मौजूद रही, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो। अधिवक्ताओं ने बताया कि चुनाव शांतिपूर्ण होगी। এই নির্বাচন আপনি পদে দাঁড়িয়েছেন সভাপতি পদে, কেন দাঁড়ালেন, কারণ কি? আমি এই কারণে দাঁড়ালাম, যিনি আমার অপোনেন্টে দাঁড়িয়েছেন দেবব্রত সাই মহাশয়, উনি আগের এক্স প্রেসিডেন্টকে ম্যানেজ করে আনকন্টেস্ট প্রেসিডেন্ট হিসেবে জেতার চেষ্টা করেছিলেন। তা গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক আনকন্টেস্ট প্রেসিডেন্ট, ওই জন্যই আমি দাঁড়িয়েছি। জেতার ব্যাপারে কতটা আশাবাদী রয়েছেন? আমি 100% আশাবাদী। যদি জেতেন কি কি আপনি কাজ করবেন? যদি জিতি তাহলে আমার সর্বপ্রথম কাজ হবে, দেখুন আমি কিছু করতে পারবো না, আমি একটা প্রস্তাব দেবো যেটা মৃত্যুকালীন একটা লয়ার মারা গেলে যেন 3 লাখ টাকা দেয়, তার জন্য আমি প্রস্তাব পেশ করবো প্রথম এক্সিকিউটিভ মিটিংয়ে। আরেকটা যেটা করব,
কোনো লয়ার যদি শারীরিকভাবে অসুস্থ হয় তাকে প্রথম যে হসপিটাল বা ভালো হসপিটাল বা নার্সিংয়ে ভর্তি করতে গেলে ফার্স্ট যে টাকাটা লাগবে সেটা যেন বেয়ার করে, সেটার জন্য আমি প্রস্তাব দেবো প্রথম এক্সিকিউটিভ কমিটি। আপনার নাম? অভিজিৎ ব্যানার্জি। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PV न्यूज। विश्व टीबी दिवस के उपलक्ष्य पर जागरूकता अभियान चलाया गया। बांकुड़ा सम्मेलनी मेडिकल कॉलेज की तरफ से गुरुवार सुबह एक रैली लोकलपुर कैंपस से निकाली गई। पदयात्रा में बांकुड़ा सम्मेलनी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के चिकित्सक, नर्स और स्वास्थ्य कर्मी गण उपस्थित रहे। लोकपुर से शुरू हुई यह रैली नए भवन तक गई, जहां बांकुड़ा विधायक के साथ टीबी रोग को लेकर विचार विमर्श करने के साथ ही नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। आज के विश्व যক্ষা दिवस বা ওয়ার্ল্ড টিউবারকুলোসিস ডে 1882 সালে এই রোগের জীবাণু আবিষ্কারক রবার্ট কখ তিনি এটাকে বলেছিলেন যে আমি এটা বার করেছি, অর্থাৎ পৃথিবীর লোককে জানিয়েছিলেন যে এই জীবাণু আবিষ্কারের কথা। তার 100 বছর পরে আমরা অর্থাৎ সারা পৃথিবীর লোক বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তরফ থেকে আজকের এই 24শে মার্চ এই দিনটিকে পালন করা হয় যক্ষা রোগের সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার জন্য সারা পৃথিবীব্যাপী। তারই একটা অংশ হিসেবে আজকে আমরা বাঁকুড়া সম্মেলনী মেডিকেল কলেজে আমরা লোকপুর ক্যাম্পাস থেকে সকালে একটি পদযাত্রা করেছি। নার্সিং এবং বিভিন্ন আমাদের মেডিকেল কলেজের স্টুডেন্ট, শিক্ষক, সমস্ত ধরনের কর্মচারীবৃন্দ সবাই অংশগ্রহণ করেছিলেন। আমরা এসে হাজির হয়েছি বর্তমানে গোবিন্দনগর হাসপাতাল ক্যাম্পাসের ভেতরে, এবং এখান থেকে আমরা কিছুক্ষণ আমরা একটা সেমিনার করছি। সেই সেমিনারে এই সম্পর্কে বক্তব্য রাখবেন বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধান, প্রিন্সিপাল স্যার, এবং আমরা যারা আছি তারা মানুষকে সচেতন করার জন্য কিছু বক্তব্য রাখবো। এইভাবে আজকে আমরা পেশেন্টের জন্য কিছু, রোগীদের জন্য আমরা কিছু ফলমূলের ব্যবস্থা করেছি, সেটাও আমরা গিয়ে দেবো ওয়ারে। এইভাবে আমরা আজকে দিনটি পালন করব। কি অনুষ্ঠান আছে এবং কী কী করলেন আজকে? প্রত্যেক বছরই এই 24শে মার্চ এটা ওয়ার্ল্ড টিবি ডে, বিশ্ব যক্ষা দিবস উদযাপিত হয়। তার কারণ হচ্ছে যে এটা যত ইনফেকশাস ডিজিজ আছে তার মধ্যে এটা সেকেন্ড বৃহত্তম যে অনেক জীবন কেড়ে নেয়। এবং শুধু জীবন কেড়ে নেওয়া নয়, একজনের বাড়িতে হলে অন্য যেমন ইনফেক্টেড হয় তার আর্থিক দিক থেকে ভেঙে পড়ে, এবং বৃহত্তর অর্থে সামাজিক দিকেও একটা আর্থিক অবক্ষয়ের প্রভাব দেখা যায়। সেই জন্য 2014-15 সালে ওয়ার্ল্ড লিডার্সরা ঠিক করেছিল যে টিবি শেষ করতে হবে। তার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা রয়েছে, স্বাস্থ্য দপ্তরের আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে, সেগুলো পালন করা হচ্ছে। এবং তাতে দেখা গেছে যে 2020 অবধি টিবি রোগীর মৃত্যুর হার এবং টিবি ইনফেকশনের হার অনেক কমে গিয়েছে। কিন্তু এবারে ব্যাপারটা একটু বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ 2020 সালের পর কোভিড প্যান্ডেমিক হওয়ার জন্য টিবির চিকিৎসা সংক্রান্ত পরিষেবা অনেক জায়গাতেই ব্যাহত হয়েছে, এবং সারা পৃথিবীতেই আবার টিবির সংক্রমণ এবং মৃত্যু হার সামান্য বাড়ছে। সেই জন্য এবারের থিম ইনভেস্ট টু এন্ড, তার মানে সেভ লাইফ, জীবন বাঁচাতে হবে, এবং সমস্ত দিক থেকে যা যা ইনভেস্টমেন্ট দরকার সেটা আর্থিক, প্রশাসনিক এবং বিজ্ঞানসম্মত ওষুধ সরবরাহ সব দিক দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, যাতে সকলের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানো যায়। সে ডাক্তার, প্রশাসন এবং আমাদের সাধারণ মানুষের মধ্যে সবাই মিলে যদি কাজ করা যায়, তাহলে আলটিমেটলি আমরা টিবি বিরুদ্ধে জয়লাভ করব। কারণ আমাদের টার্গেট হচ্ছে 2030 সালের মধ্যে 80% ইনফেকশন রেট
এবং 90% ডেথ রেট যা 2000 আগে ছিল তার থেকে কমিয়ে নেওয়া। সাময়িকভাবে যেটা ব্যাহত হয়েছে কোভিড প্যান্ডেমিকের জন্য, এটা ঘুরে দাঁড়াবার সময় এবং তার জন্য সচেতনতা এবং সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রত্যেকে উজ্জীবিত করা হচ্ছে এবং ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। बांकुड़ा से अनुप्राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए पीबी न्यूज। नमस्कार।